Hello students, welcome to my educational channel Gravity Tech. As you prepare for MHCT or JEE entrance exams for the next engineering admissions, maths will be the key subject in these entrance exams. So, this is the first video which has only 3 examples on the trigonometry which will help you on these entrance exams front. If you like the content, subscribe to the channel so that you get updates about the new videos, like the video and share it with other students as well so that most of the students will get benefit of this. One more thing, this channel will not only help you in MSCT or JEE entrance exams, but also it is going to be a key for engineering M1, M2 and M3 subjects in next 4 years of your engineering education. So this is not going to be like short term, but it is going to help you in long run. Okay, so if you have any example which you would want me to cover, send the details or email. The email address you will find in the description of this video. I will cover that example in my next videos, and the same trade we will continue for the engineering M1, M2, M3 subjects as well. Now let's see what are those 3 examples I've tried to cover as a part of first video here. Okay okay so the objectives are like some of the sample examples are we going to cover for the MSCT and the JEE maths entrance exam. Okay, now the first example what it has is this: if 4 sine square theta plus 2 under root 3 plus 1 cos theta is equal to 4 plus under root 3, then the general value of the theta is. Now there are 4 options they have given. Now let's see how to solve this. See, it's very easy. If you look at, right, this is a 4 sine square theta plus 2 and under root 3 plus 1 cos theta plus 4 is equal to 4 plus under root 3. How you should approach to solve this? So this is something you need to basically try to convert into the quadratic equation. इसे आप quadratic equation में convert करने का सोचिए. कैसे? See, यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin square है. Sin square plus cos square is equal to 1. ये वाला identity आपको पता है. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. करेक्ट. सो देखिए, 4 साइन स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बाकी एज इट इज रखा हुआ है सब कुछ. अभी इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो 4 माइनस 4 cos square theta is equal to what? Plus 2 root 3 plus 1 cos theta is equal to 4 plus root 3 as it is रखा हुआ है. नाउ ये वाला 4 और दिस 4 दोनों में से दोनों साइड पे 4 4 है, वो कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो बचेगा क्या? माइनस 4 cos square theta प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 cos theta is equal to अंडर रूट 3. नाउ इस अभी अगर आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है. अगर आप cos theta का वैल्यू x पुट कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 x इज इक्वल टू अंडर रूट 3. लेकिन हमको यहाँ पे x पुट करके कुछ लेंदी करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज दिस इज एमसीक्यू, राइट. इंट्रेंस एग्जाम में आपको जितना जल्दी आप क्विकली सॉल्व कर सको उतना क्विकली सॉल्व करना है. ये चारों के चारों स्टेप्स आपको एक ही स्टेप में करने हैं, राइट. सो यहाँ पे मैंने इतना डिटेल में क्यों लिखा हुआ है? ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाउ टू सॉल्व दिस, राइट. सो यहाँ पे माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर लिया. सो दिस विल बी 4 cos स्क्वायर थीटा, दिस विल बी माइनस, राइट, एज इट इज. एंड ये जो रूट 3 है ये इस साइड में आने के बाद माइनस रूट 3 होगा. अंडर रूट, या माइनस रूट 3 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, राइट, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस साइन. अभी ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 cos थीटा प्लस रूट 3. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो. सो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 cos थीटा प्लस, दैट इज माइनस सेकंड, माइनस 2 cos थीटा. सी, सो ये जो 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया. सो 2 रूट 3 cos थीटा हियर एंड माइनस 2 cos थीटा. नाउ यहाँ पे थोड़ा अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, यहाँ पे रूट 3 है तो हम रूट 3 कहाँ से कॉमन निकल पाएगा? इधर से. सो ये 2 रूट 3 वाला जो टर्म है इस साइड में लेना है और cos थीटा वाला टर्म इस साइड में जाने देना है, राइट. इट्स सिंपली जस्ट आई मल्टीप्लाइड. नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों में से, राइट, 2 cos थीटा कॉमन निकलेगा. सो व्हाट विल रिमेन? 2 cos थीटा माइनस 1. यहां से रूट 3 और रूट 3 कॉमन निकलेगा, बट दैट विल बी माइनस सेकंड, राइट. सो यहाँ पे भी क्या बचेगा? 2 cos थीटा माइनस 1, करेक्ट. सो
the next step would be what? 2 cos theta common, 2 cos theta minus 1 minus root 3 common, 2 cos theta minus 1. So 2 cos theta minus 1, 2 cos theta minus 1 will be in one bracket and 2 cos theta minus root 3 will be in another bracket. Correct? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये is equal to 0, this is equal to 0. What does that mean? Cos theta is equal to root 3 by 2 or cos theta is equal to 1 half. Correct? So if cos theta is equal to root 3 by 2, abhi, now this is something where you need to basically understand why, how it has come. आप अगर इस तरीके से देखते हो, राइट, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, करेक्ट, एक्स वाई प्लेन. अभी हमें पता है, अभी कॉस पॉजिटिव चाहिए हमको, राइट. कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है? ऑल, या ध्यान में कैसे रहता है, ध्यान में कैसे रखना है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, करेक्ट. इसका मतलब, राइट, सो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड कोसेक पॉजिटिव होता, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, सॉरी. ओके, सो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. तो एक तो वैल्यू है रूट 3 बाई 2, सो रूट 3 बाई 2, करेक्ट, और दूसरा वैल्यू 1 हाफ. अभी रूट 3 बाई 2 कब आता है? जब पाई बाय 6 वैल्यू होता है. हमारे पास वो टेबल, बड़ा सा टेबल है, करेक्ट. सो रूट 3 बाई 2 विल बी व्हाट? दिस, एंड देन 1 हाफ, राइट. 1 हाफ कब आता है? पाई बाय 3 होता है, राइट. सो हर बार आप अगर ये पूरा का पूरा, सबसे पहले तो ये आ गया पाई बाय 6, करेक्ट. सो उसके बाद फिर से आप डबल घूमोगे तो पूरा सर्कल घूमे आप, राइट. सो पहली बार तो 0 प्लस आप 2 पाई घूमे, फिर आप और एक बार घूमेंगे 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, राइट. सो ये मल्टीपल, टॉइस ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 2n पाई, राइट. 0, 2 पाई, 3, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से. सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 6. सिमिलरली जो वन हाफ है, जो वन हाफ है, वन हाफ के लिए क्या आएगा? वन हाफ के लिए जो आंसर है, राइट, वन हाफ के लिए इट विल बी व्हाट? बेसिकली पाई बाय 3, is it? That is 60 degree. So again it will be what? 2n pi plus 2n pi plus 2n pi plus 2n pi plus, right. लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आता है, सो 2n pi माइनस 2n pi माइनस 2n pi माइनस 2n pi माइनस, इसलिए प्लस और माइनस लिखा गया है. सो फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए. सो द आंसर इज व्हाट? 2n pi प्लस और माइनस पाई बाय 6 और 2n pi प्लस और माइनस पाई बाय 3. इनमें से कौन सा वैल्यू यहाँ पे है? सो दिस इज द वन. सो द आंसर इज व्हाट? ए. होपफुली यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली दैट मींस, राइट. सो इस तरीके से ये वाला एग्जांपल आपको सॉल्व करना था. नेक्स्ट एग्जांपल है, नाउ दे आर सेइंग tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा into tan 2 थीटा into tan 3 थीटा. देन the general value of theta will be what? What is, maybe इनमें से कौन सा है? नाउ यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? tan theta plus tan 2 theta plus tan 3 theta is equal to tan theta tan 2 theta into tan 3 theta. इनका मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है. अभी हमको ये एक फॉर्मूला पता है, अगर tan a plus b plus c है, tan of a plus b plus c है, तो क्या आता है? tan a plus tan b plus tan c माइनस तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन 1 माइनस a tan a into tan b into tan c into tan a. सो दो दो का कॉम्बिनेशन लेके उनका मल्टीप्लीकेशन लिख करके सब्सट्रैक्ट करना है, राइट. दैट्स हाउ द a प्लस बी प्लस सी. अभी हमारे पास a का वैल्यू है थीटा, b का है 2 थीटा, c का है 3 थीटा. सो a का वैल्यू पुट करो थीटा, b का 2 थीटा, c का 3 थीटा. सो सी, सो इट विल बिकम tan थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा माइनस tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा, और नीचे मतलब ए बी सी का वैल्यू हमने रिप्लेस किया हुआ है. लेकिन हमारे पास अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास आप देखोगे दिस होल थिंग जो है, ए एडिशन इज इक्वल टू व्हाट? मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट. इसका मतलब इस ये माइनस ए क्या आ जाएगा? जीरो.
सो दिस होल थिंग विल बिकम 0, क्योंकि ये वाला एंड ये दोनों के दोनों सेम है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या आएगा? 0. सो 0 अपॉन एनीथिंग विल अगेन बी अ 0. मतलब ये जो tan है, ये थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ये कितना हो गया? 6 थीटा. करेक्ट, दिस इज अ 6 थीटा. सो tan 6 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 0. करेक्ट. सो लेट्स सी. सो tan 6 थीटा इज इक्वल टू 0. लेकिन अभी अगर आप tan देखोगे, tan 0 कब होता है? करेक्ट. सी, tan 0 कब होता है? अगेन ये 4 क्वाड्रेंट्स. tan 0 होता है 0 को या फिर पाई को. सो द वैल्यू ऑफ tan इज व्हाट? एट 0 और पाई. मतलब 0 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरीके से, मतलब n पाई हो गया. करेक्ट. व्हाट डज दैट मीन? 6 थीटा इज इक्वल टू n पाई. करेक्ट. 6 थीटा इज इक्वल टू n पाई. समझ में आया? सो थीटा विल बी व्हाट? n पाई अपॉन 6. सो दैट्स द वैल्यू b. अंडरस्टूड? सो ये था सेकंड क्वेश्चन. So now third question. Now they are given the equation sin raised to 4x plus cos raised to 4x plus sin 2x plus alpha is equal to 0 is solvable for alpha की ऐसी कौन सी वैल्यू है इनमें से जिसके लिए ये इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं? सी, ये भी इजी है. आपको यहाँ पे थोड़ा अगर गौर करें तो sin raised to 4 है, cos raised to 4 है, तो यहाँ कहीं पे हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज करना है. ये हमारे दिमाग में आना चाहिए. सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम कहाँ से यूज करेंगे? हमारे पास वो फॉर्मूला है, राइट. अगर आप a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर देखो, राइट, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी. तो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर नहीं है, तो हमको प्लस और माइनस करना है. 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. सी देखिए, मैंने ये साइन रेस टू 4x कॉस रेस टू 4x ऐसे कैसे लिया हुआ है, लेकिन 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक बार प्लस और माइनस कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए, और ये बाकी एज इट इज. नाउ इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ये जो है, करेक्ट, साइन रेस टू 4 कॉस रेस टू 4 और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर. और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आता है? दिस इज आइडेंटिटी, दैट इज 1. सो 1 स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगा? 1. सो दिस विल बिकम 1. और फिर द नेक्स्ट में भी विल सॉल्व इट, राइट. सी, नाउ दैट मींस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज रख लिया. नाउ दिस विल बी 1. सो 1 का स्क्वायर 1. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0. अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे, राइट, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x. साइन 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स. यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स. यस. सो इसको हम अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अगर यहाँ पे साइन 2x है, तो यहाँ पे साइन 2x का ब्रैकेट स्क्वायर आना चाहिए. सो ये ब्रैकेट स्क्वायर कब आएगा? जब हम इस 2 को कर देंगे 4. करेक्ट. अगर हमने इस 2 को कर दिया 4, तो ये 4 कब होगा? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो फिर ये जो हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म हो जाएगा साइन 2x का ब्रैकेट स्क्वायर. 2 साइन एक्स कॉस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब साइन 2x का ब्रैकेट स्क्वायर, राइट. सो लेट्स सी नाउ हाउ टू डू दैट. सो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 2 से, ये एज इट इज रखा हुआ है. नाउ दिस 2 sin x cos x इज व्हाट? sin 2x. सो sin 2x ब्रैकेट स्क्वायर, बाकी एज इट इज सब कुछ रखा हुआ है. अभी इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 2, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. 2 sin 2x प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0. सी, सो 2 माइनस साइन ऑफ 2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 साइन ऑफ 2x प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म इन साइन ऑफ 2x. सो साइन 2x ब्रैकेट स्क्वायर, ये पूरा का पूरा इस तरफ ले लेते हैं, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे. व्हेन यू मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, दिस विल बिकम साइन 2x ब्रैकेट स्क्वायर. दिस माइनस प्लस विल बिकम माइनस 2 साइन ऑफ 2x, and this plus 2 will become minus, and then this will also become minus. So minus sin हमने कॉमन निकाल लिया, 2 plus 2 alpha. Correct. Now this is going to be what? A square. So this is going to be what? Sin of 2x square minus 2 sin x minus 2 plus 2 alpha. So this is a quadratic equation in sin 2x. So अगर से आपने sin 2x का वैल्यू p पुट कर दिया, तो p स्क्वायर माइनस 2p ऐसे आ जाएगा. अभी इसको हमको सॉल्व करना है, राइट. नाउ लेट्स सॉल्व इट. सो अभी हम see now here
डिफरेंट मेथड्स, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। फर्स्ट तो है फॉर्मूला मेथड है वो, राइट, विच फार्मूला माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। सेकंड फार्मूला है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कि दोनों साइड में ऐसा कुछ ऐड करो जिससे एक्चुअली वो एक साइड में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए इन टर्म्स ऑफ जहां पे वेरिएबल है, राइट। एंड थर्ड है फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पे हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर एडजस्ट करने का कोशिश किया हुआ है। सो इफ यू लुक एट हियर दिस इज ए स्क्वायर, राइट, अगर साइन 2x को आप a पकड़ो तो ए स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पे अगर मैंने प्लस 1 लिखा तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस होल थिंग विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट दैट परफेक्ट स्क्वायर विल बी साइन 2x माइनस 1, और उसका ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर हमको यहाँ पे प्लस 1 चाहिए तो हमको ये जो माइनस 2 है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3, अगर 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2। सो दिस इज व्हाट द एडजस्टमेंट वी हैव डन, करेक्ट। सो दिस होल थिंग विल बिकम नाउ साइन 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 साइन x प्लस 1, और इस जो 3 प्लस 2 अल्फा है उसको इस साइड में ले लिया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी साइन 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये 3 प्लस 2 अल्फा एज इट इज। ये स्क्वायर है, इस साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा प्लस और माइनस होता है, राइट। सो साइन ऑफ 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर is equal to 3 plus 2 alpha. So sin 2x minus 1 will be what? Plus or minus under root 3 plus 2 alpha. So इस 1 को इस साइड में ले लेंगे, राइट। सो sin 2x is equal to what? 1 plus or minus under root 3 plus 2 alpha. लेकिन साइन का वैल्यू कभी भी आप देखोगे, साइन का वैल्यू कभी भी आप अगर देखोगे तो साइन का वैल्यू हमेशा माइनस और प्लस 1 में ही आता है। इफ यू डोंट रिमेंबर कि साइन का ग्राफ कैसे होता है, साइन का ग्राफ होता है इस तरीके से, ओके, और साइन इज एक्चुअली ऐसे होता है, ओके। और ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आता है 1, और मिनिमम वैल्यू आता है यहाँ पे क्या, माइनस 1, ओके। परफेक्ट ड्राइंग में नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे आई एम यूजिंग अ पेंसिल, ओके, लेकिन इस तरीके से ये यहाँ से जाता है, ओके, साइन 0 0। सो इसलिए साइन 2x भी क्या होगा, 1 और माइनस 1 के बीच में होगा। सो sin 2x, right? Since sin theta will always be in minus 1 1, sin 2x will be what, minus 1 और 1 के बीच में रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड इंटरवल, ओके। सो sin 2x का जो वैल्यू है माइनस 1 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, बट ये स्क्वायर ब्रैकेट होने की वजह से इक्वल टू भी रहेगा। सो माइनस 1 लेस देन इक्वल टू साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट, इन दोनों के बीच में। नाउ साइन 2x का वैल्यू क्या है, 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 अल्फा। अभी हमको यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालना है, मतलब ये जो सब कुछ एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से निकाल देना है। तो सबसे पहले हम इस 1 को निकालते हैं। ये 1 कैसे जाएगा, जब हम इस यहाँ से माइनस 1 करेंगे। सो सब जगह से माइनस 1 करो, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ से 1 चला जाएगा, यहाँ पे रहेगा 1 माइनस 1 0, सी। सो माइनस 2 आ गया, राइट, यहाँ से 1 और ये माइनस 1 किया 0। सो this is going to be what, minus 2 less than equal to under root plus or minus under root 3 plus 2 alpha less than equal to 0। लेकिन आप अगर देखोगे जब अभी हमको अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे दोनों साइड का, सबका स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। सो व्हेन यू टेक अ स्क्वायर दिस विल बी 3 plus 2 alpha एंड it will always be greater than 0, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन व्हाट, 4, क्योंकि क्या, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, ओके। नाउ हमें यहाँ से 3 निकालना है, सो लेट्स सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम, सब जगह तीनों में से 3 माइनस करेंगे। सो माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2 अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट। नाउ हमको 2 भी नहीं चाहिए, यहाँ पे अल्फा चाहिए खाली, सो 2 से डिवाइड कर लो। सो अल्फा माइनस 3/2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 1/2। सो आंसर क्या है, दिस सी, minus 3/2 less than equal to alpha less than equal to 1/2, right? So that's all actually I had it from this video। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए जो वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ उन सब का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दूसरे विद्यार्थियों से भी शेयर करें ताकि ये इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को हो, राइट। आई विश यू हैप्पी लर्निंग विद द ग्रेविटी टेक। थैंक यू।